सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। 2-3 ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 110%, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਰੀਆ, ਵੋਲੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਮੋਮੈਂਟਮਸ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡਨ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਟੌਪਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 ਔਰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਐਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 6, ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ n-1 ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ π/2 ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ π/2 ਲਿਮਿਟ ਹੋਣਾ ਮਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 8 x, ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ n-1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। n-1 ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। n-1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ। 7 ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 5 ਆਉਂਦਾ। 5 ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 3 ਆਉਂਦਾ। ਔਰ 3 ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 1 ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ n-1, n-3, n-5 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। n ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 8, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 6, 5 ਨਹੀਂ 4, 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟਰਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ π/2 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 35π ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 256, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਜ਼ੀ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
मैं कोई भी एग्जांपल ले लेने फॉर एग्जांपल इतने मेरे को कोस की पावर 0 to π/2 कोस की पावर कुछ भी 8 दी है या 7 दी है या 6 दी है एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। सो उत्थे भी सेम ही पैटर्न फॉलो होएगा। ऊपर मेरे को की होएगा जी 5 × 3 × 1 और डिनोमिनेटर दे विच की होएगा 6 × 4 × 2 और सब दी मल्टीप्लाई कर देनी है π/2 दे नाल। ईजी सिंपल, कितनी सौखी जी गल है। हुण एक क्वेश्चन होर अराइज होंदा है मैम ये तो ठीक है समझ आ गया, पर जेकर ओड नंबर होवे ओड पावर होवे फिर असीं की करांगे। ये तो ईवन वास्ते सी, जो ओड पावर आ जाती है ना उत्थे भी तुसीं सेम ही पैटर्न नूं फॉलो करना है। फिर तुसीं सानूं पहला क्यों नहीं दस्सिया, पहला तुसीं ईवन ओड वाला कॉन्सैप्ट क्यों लिया। सेम पैटर्न तो फॉलो होएगा, पर इस चीज़ का ध्यान रखियो ओड दे विच π/2 ने नहीं आना, ओड दे विच π/2 नहीं आएगा, बाकी फॉलो सेम पैटर्न होने वाला है। किवें फॉर एग्जाम्पल इत्थे तुहाडे कोल 0 to π/2 है और मैं तुहाडे कोल एग्जाम्पल ले लैनी हाँ साइन की पावर 7 दी। हुण 7 तो एक ओड नंबर है, पैटर्न फॉलो सेम हो रहा है, मीनस टू से ये तो एक घट कितना होएगा जी 6 होएगा, 4 होएगा एंड 2 होएगा। डिनोमिनेटर दे विच वी ऑल नो दैट n हुंदा है, ठीक है। फिर उस तो बाद दो उस दे विच घटदे रहिंदे ने, 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। हुण इस दे विच यही मेरे कोल आंसर है, इनू सोल्व करके जो भी आंसर आ जाता है दैट इज़ माई सोल्यूशन। π/2 सिर्फ और सिर्फ ईवन दे विच ही मल्टीप्लाई होना है और दे विच मल्टीप्लाई नहीं होना। ईजी सिंपल क्लीयर है। हुण वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, सानू प्रॉपर तरीके नाल क्लीयर हो गया। एक चीज़ होर आपां इत्थे डिस्कस कर लैंदे आ। समटाइम्स की हुंदा है साइन ते कोस दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, साइन ते कोस दोनों ही की आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। मीनस टू से साइन की पावर कुछ ना कुछ है, साइन की पावर mx और कोस की पावर फॉर एग्जाम्पल nx दे नाल मैनू दिती हुई है। हुण तुसीं सोचोगे इत्थे भी सेम कॉन्सैप्ट लगेगा, हाँ जी बिल्कुल इत्थे भी सेम ही कॉन्सैप्ट लगेगा, ठीक है। कोई भी ये फर्क नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूले की यही तो एक खासियत है कि जेकर तुहानू एक बार समझ आ गया तो फिर कोई कन्फ्यूजन कदे हुंदी ही नहीं, ठीक है। मान लो मेरे को की ने दोनों ही ईवन ने, मैं एक दी वैल्यू ले ली कुछ ना कुछ 2 ले ली, ठीक है जी। एक दी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितनी है 4 है। तो हुण आपां की करिए, जिवें आपां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहला इनू चक लो जी। देखो उपर कितना हुंदा है n-1 हुंदा ना, n-1 करांगे तो 2 - 1 दे विच कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पहले दे विच तो ओनली 1 आएगा, दूसरे के अकॉर्डिंग मेरे को कितना आ जाना है 3 × 1। एग्री हो सारे। और डिवाइड दे विच देखो जी, डिवाइड दे विच की होएगा, डिवाइड दे विच दोनों का प्लस कर दो। देखो 2 ते 4 किन्ने हुंदे ने, तुसीं कहोगे 6 हुंदे ने, ठीक है। तो नीचे 6 तो कहानी शुरू होएगी 6 4 2 एंड उस तो बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और क्योंकि दोनों ही नंबर्स मेरे को की ने ईवन नंबर ने, वन मोर थिंग ध्यान नाल देखो दोनों ही नंबर्स दोनों ही पावर्स मेरे को ईवन ने, दैट इज़ वाई π/2 नाल मल्टीप्लाई करना तो मस्ट है। तो उस तो बाद तो आंसर तो सामने तैयार है, ठीक है। जो भी आंसर आना दैट इज़ π/ आई थिंक सो 16 × 2 32 आ जाएगा, है ना। तो ये तो सोल्यूशन आ गया। हुण एक क्वेश्चन आ जाता है मैम जेकर बाय चांस कोई भी एक भी ना ईवन होया, मतलब कोई एक भी ऑड हो गया ताकि साढ़े कोल π/2 नहीं लगेगा। बिल्कुल जी, फिर साढ़े कोल π/2 नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 to π/2 मैनू लिमिट दी हुई है, ठीक है जी। एक मेरे को साइन की पावर 3 आ गई और एक मेरे को कोस की पावर लैट कर लो 6 आ गई। तो हुण असीं की करिए, सबनों पता है उपर मेरे को की हो जानी है, एक वैल्यू घट जानी है 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इस दे विच भी मेरे को की हो जाना है 5 3 एंड 1 और डिनोमिनेटर च दोनों का प्लस करके कितना आएगा, वी ऑल नो दैट 9 आएगा। तो 9 × 7 5 3 एंड 1 की हुण असीं इत्थे π/2 नहीं लगावांगे। जो तुहाडे कोल एक भी पावर ओड आ जाती है तो तुसीं उत्थे π/2 नहीं लगाओगे। इनू सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। दिस इज़ हाउ वी यूज़ रिडक्शन फॉर्मूला। क्लीयर है जी, उम्मीद करती हैं ये चीज़ क्लीयर होगी। अगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ों हम डिस्कस करते हैं। ये किते भी कोई भी डाउट होया तो तुसीं कमेंट करके जरूर पूछ लियो। चलो हुण आपां अगे कंटिन्यू करते हैं अपने अगले टॉपिक नूं। हुण जस्ट अपने 2 ही टॉपिक रह चुके हैं, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड
वन मोर थिंग इज़ चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। सो सब तो पहले तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गल कर लैंने आ। फर्स्ट रीजन दे विच भी हो सकता है, स्क्वायर दे विच भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल दे विच जां 3 डायमेंशनल दे विच भी हो सकता है। तो सब तो पहले आप गल करते हैं जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਇਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ सिंपल शब्दों में गल करिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है। सबसे सिंपल सी बात बताऊं, कुछ नहीं करना, जस्ट तुसी की करना है फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा सिंपल, अपन सबनों पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो वह फॉर्मूला यूज़ होएगा, इस तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, किते भी नहीं बनता, ठीक है। तो चलो फिर भी एक बार डेफिनेशन जरूर लिख लें ताकि समझ आ जाए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल का नाम आप रख लें जी पी, ठीक है। किसी भी पार्टिकल पी का, ठीक है, जिहदा कोई ना कोई मास पक्का होएगा, मास होएगा मीनस टू से उसका कोई ना कोई वेट पक्का होएगा, है ना। तो मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मास नूं आपां नाम दे देने एम का। अबाउट अ लाइन, हुण किस लाइन के अबाउट तुसीं उसका फाइंड आउट करना है, उस लाइन नूं आपां नाम दे देने एल का, ठीक है जी। एल इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ its mass m and square of the distance r। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचोगे मैंने कहा सी कि की हुंदा m इंटू आर स्क्वायर, तो r की हुंदा r इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर इज़ द डिस्टेंस। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचोगे किस चीज़ का डिस्टेंस कढ़िया जा रहा है, डिस्टेंस r ऑफ द पॉइंट P from the line L। चिंता ना करो, इन्ना कुछ कढ़न की ज़रूरत नहीं पैनी। कुल मिला के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ सिंपली इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मैक्सीमम इस चीज़ का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, एवें दे क्वेश्चन हाले तक बने नहीं हैगे, बट स्टिल क्योंकि आपां ने हर एक चीज़ नूं कवर करना है तो इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखो कि छड्डना नहीं है, ठीक है। तो मैक्सीमम तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है, वो तो सामने है कि जेकर तुसी एक रीजन दे विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो दैट विल बी मास इंटू डिस्टेंस, जो भी तुसी फाइंड आउट करते हो पॉइंट दा लाइन तो वो कोल की होएगा आर दा स्क्वायर होएगा। सिंपल ईजी, कुछ भी ये डिफिकल्ट नहीं हैगा। हुण जेकर गल आ जाती है 2 डायमेंशनल की, 2 डायमेंशनल दे विच तुसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किवें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हुण 2 डायमेंशनल दे विच एक चीज़ तो पता है, हुण मैं इत्थे लिख रही हाँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि तुहाडे कोल एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, और इस दे विच तुहाडे कोल कोई भी जिहड़ा पॉइंट तुसी लै रहे हो वो तुहाडे कोल की होएगा एक्स वाई होएगा, है ना। एक्स की भी वैल्यू होने वाली है और वाई की भी होने वाली है। हुण जेकर तां तुसी मोमेंट कढ रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कढ रहे हो किहदे अबाउट एक्स एक्सिस, हुणे एक्स एक्सिस के अबाउट होएगा जो वाई एक्सिस के अबाउट होएगा, वो तुहानू क्वेश्चन च दिता होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट कढ रहे हो, कुछ नहीं करना जी, डबल इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है, जिस दे नाल तुहाडे कोल रीजन आ जाएगा। और डबल इंटीग्रेशन किहदी करोगे, वाई स्क्वायर दी करोगे। आई विल रिपीट इट अगेन, डबल इंटीग्रेशन किहदी होएगी, वाई स्क्वायर दी होएगी। नाल तुहानू डेंसिटी हमेशा दिती होगी, याद करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपां पढ़ी सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे विच मैं तुहानू जो फॉर्मूला दस्सिया सी तो उस दे विच कहा सी कि डेंसिटी हमेशा गिवन हुंदी है, तो इस दे विच भी तुहानू डेंसिटी गिवन होएगी, ठीक है। और डेंसिटी नू नाल मल्टीप्लाई करके आपां ने इंटीग्रेशन कर देनी है वाई और एक्स के अकॉर्डिंग। ये तुसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कढ रहे हो जिन्हों आपां आई एक्स दे नाल भी रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। जेकर हुण तुसी सोचोगे मैम अबाउट बाई एक्सिस कढना होवे फिर असीं की करांगे, तो अबाउट बाई एक्सिस कढ सकते हो जी, जिन्हों आपां रिप्रजेंट करांगे आई वाई दे नाल। और डबल इंटीग्रेशन होने वाली है, हुण तुसी समझदार हो, इत्थे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हमेशा उल्टा आंदा हुंदा है, ठीक है। और नाल डेंसिटी ने मल्टीप्लाई हो जाना है डी वाई डी एक्स, सिंपल ईजी।
कुछ भी इस दे नाल करन दी जरूरत नहीं है। ये तुहाडा की होएगा फॉर्मूला होएगा क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल कर लैंदे आ, थोड़ा सा पता लग जाएगा एग्जाम्पल करके भी की चीज़ है, ये सानू पता लग जाए, है ना। मैं तुहाडे सामने एग्जाम्पल लिख रही हाँ, तुहाडे जो मैं तुहानू PDF भेजी सी ग्रैजुएशन बुक की, उस दे विच सब तो पहले एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल आप थोड़ी सॉल्व कर लैंदे आ, जिस दे विच तुहानू की दिता होया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वेयर, ऑफ अ स्क्वेयर, एक स्क्वेयर का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है जी, स्क्वेयर का रीजन ऑब्वियसली स्क्वेयर रीजन ऑफ यूनिट डेंसिटी, मैं तुहानू क्या सी हमेशा डेंसिटी तुहानू गिवन होएगी, और इस क्वेश्चन दे विच डेंसिटी तुहानू कितनी दिती हुई है, Y1 दिती हुई है अबाउट एक्स एक्सिस। हुण देखो जी किस दे अबाउट कढ़ना है, तुसी एक्स एक्सिस दे अबाउट कढ़ना है। ठीक है, एंड द साइड बीइंग 2A, तो साइड तुहानू कितनी दिती हुई है, एक जो स्क्वेयर है उसकी 2A। हुण क्योंकि तुहाडे कोल एक दी साइड 2A है, तो हर एक चीज़ की साइड 2A होनी है, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। हुण एक चीज़ तो सानू पता लग गया कि असी अबाउट एक्स एक्सिस कढ़नी है। ठीक है, क्योंकि तुसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कढ़ना है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल दे विच है और तुसी अबाउट एक्स एक्सिस कढ़ना है, तो मैंने फाइंड आउट की करना है, आई एक्स फाइंड आउट करना है, जिस दे विच मेरी डबल इंटीग्रेशन होएगी रीजन दी, और यह रीजन मेरे को ध्यान नाल सुनो, एक्स एक्सिस के लिए आप इत्थे की लवांगे जी वाई स्क्वेयर लवांगे, डेंसिटी मैंने नाल पुट कर देनी है, और इंटीग्रेशन होनी है dy dx। इस चीज़ नाल सारे एग्री हो, कोई इस दे विच कन्फ्यूजन होवे तो तुसी पूछ सकते हो। वन मोर थिंग, जो डेंसिटी की वैल्यू है वो मैनू कितनी दिती हुई है, हुण आप इत्थे सारे समझदार हाँ कि मैनू वैल्यू दे दी है 1, मतलब इसकी जगह पर की पुट हो जाना है, 1 पुट हो जाना है। तो इस क्वेश्चन च कुछ भी एवें दा नहीं है जो शायद मैनू समझ नहीं आया, तो बट एक चीज़ मेरे माइंड के विच हले भी घूम रही है, मैम असीं इत्थे लिमिट्स की लवांगे, है ना, लिमिट्स का सानू नहीं पता लग्या, लिमिट्स की लवांगे। तुसीं ध्यान नाल सोच के देखो, इस क्वेश्चन के विच ही इस चीज़ का आंसर है। इन्होंने तुहानू क्या की चीज़ कही है कि एक स्क्वेयर बनया हुआ है, और स्क्वेयर की साइड कितनी है, 2A साइड है। ठीक है, अगर यह स्क्वेयर बनया हुआ है, मान लो मैंने इत्थे 2A लेंथ ली, आ पॉइंट मेरे को आ गया, दिस इज़ 2A एंड 0, और ए पॉइंट नूं मैं ए का नाम दे दिता। सिमिलरली इत्थे भी मेरे को की होएगा 2A पॉइंट होएगा। ठीक है जी, इस तो इलावा जेकर मैं इत्थे स्क्वेयर बनानी हाँ तो क्लीयर है कि इस तरीके नाल मेरा स्क्वेयर बनूगा, ये तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इस दे विच तो सारा कुछ क्लीयर है ना कि मेरे को की बनेगा, एक स्क्वेयर बनेगा। स्क्वेयर की हर एक लेंथ मेरे को की होंदी है 2A के बराबर होंदी है, तो बस फिर मैनू हुण मेरिया लिमिट्स भी मिल गई। लिमिट्स जेकर तुसी एक्स की लिमिट्स लाओगे, क्योंकि तुहाडे कोल एक्स के अकॉर्डिंग भी इंटीग्रेशन होनी है और वाई के अकॉर्डिंग भी इंटीग्रेशन होनी है, तो तुहाडी इंटीग्रेशन दे विच की रह गया, वाई स्क्वेयर। पहला एक्स के अकॉर्डिंग कर लो, फिर वाई के अकॉर्डिंग कर लियो, जिवें मर्जी कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उस तो बाद देखो मैं पहला एक्स दी लिमिट्स लै रही हूँ। एक्स दी लिमिट्स की ने 0 तो लैके 2A तक, तो 0 तो लैके 2A तक, और वाई दी लिमिट्स की ने 0 तो लैके 2A तक, और वाई दी लिमिट्स भी की आ गई 0 तो लैके 2A तक। सिंपल ईजी, तो कुछ नहीं करना, जो तुहानू फॉर्मूला दिता है बस उसनू यूज़ करना है, तो तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व होके तुहाडे सामने तैयार है। कोई डाउट इस दे विच? ठीक है, हुण जो तुसीं इस क्वेश्चन नू सॉल्व करोगे, चलो एक बार आप सॉल्व कर भी लैंदे आ ताकि मेरे माइंड दे विच डाउट ना रहे। सब तो पहला मैं की कर रही हाँ जी, एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रही हाँ, तो मेरे को आंसर कितना आ गया, मेरे को आंसर आ गया वाई स्क्वेयर इंटू एक्स, जिहदे विच मैंने लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, और उस तो बाद मैंने dy के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन भी करनी है। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन सी इत्थे मैंने लिखी नहीं, पर इस चीज़ का आपां ऑलरेडी पता सी। चलो अगे सॉल्व कर लेने हैं। 0 तो 2A मेरे को इंटीग्रेशन है, जो तो मैं इसनू सॉल्व करांगी तो कितना आ जाएगा, तुसीं कहोगे मेरे को आ जाना है जी 2A वाई स्क्वेयर, और इस इंटीग्रेशन y के अकॉर्डिंग होनी है। वी ऑल नो दैट 2A मेरे को कितना आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, जिस दे विच मैंने की कर देनिया ने लिमिट्स नू पुट कर देना। जो तो मैं दोबारा इस दे विच लिमिट्स नू पुट कर देनी आ, वन मोर थिंग मेरे को आ जाता है 16A की पावर 4/3 माइनस 0 मीनस टू से ए मेरा की आ गया, आंसर आ गया। सो ए दिस इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सौखा काम सी, कुछ औखा नहीं सी। एक वन मोर थिंग थानू दस देवां, क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सीमम फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और वो तुहाडे सामने मैंने ऑलरेडी लिख दिते हैं कि यह फॉर्मूले होंदे ने। वन मोर थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुण आपां गल करन लगदे हां 3 डायमेंशनल दे विच, मतलब R3 दे विच, जिसनूं आपां की बोलदे हां 3D जां XYZ, है ना, तीनों चीज़ां हुंदियां ने। तो उस केस दे विच आपां ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किवें फाइंड आउट करना है। देखो जेकर तुहानूं कह दिंदे ने
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो अबाउट एक्स एक्सिस। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ एक्स एक्सिस की गल करांगी मैनू पता लग गया कि आई एक्स के नाल तां इहनूं रिप्रजेंट कर दो है ना, सौखा हो जाऊगा। और क्योंकि ट्रिपल है तो 3 के नाल इंटीग्रेशन तो होनी है। सॉल्व करके की आएगा, वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी तो जी जरूरी है, डेंसिटी भी मैनू पता है, मैनू क्वेश्चन च दिती होया करूगी, ठीक है। हुण क्योंकि मैं एक्स के अकॉर्डिंग कढ़ रही हाँ तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा किस दा, एक्स का बाकी 2 पॉइंट्स तो, ठीक है। आई विल रिपीट इट अगेन कि मेरे को ये जो मैं वैल्यू लै रही हूँ दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हुण ये मेरे को कितना आ गया, डी एक्स डी वाई डी जैड के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होनी है। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इन 3 डायमेंशनल, ठीक है जी। हुण जेकर आप गल करिए अगर मैंने वाई के अकॉर्डिंग कढ़नी होवे, अबाउट वाई एक्सिस कढ़नी होवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन जिस दे विच मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेंसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहदा होएगा, वाई एक्सिस का होएगा मेरी पॉइंट तो, ठीक है। सो दैट इज़ डी एक्स डी वाई एंड डी जैड। सिमिलरली आई जैड जो कि मेरे को ट्रिपल इंटीग्रेशन होएगी, डेंसिटी होएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई डी जैड के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन। यह सीगा तुहाडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तो वध के कुछ भी नहीं हैगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि इस दे विचों बार बार दस रही हाँ, घबराने की लड़ नहीं कि सोचो कि असीं इन्ना कुछ किवें करांगे, है ना। तो हाँ एक बार थोड़ा पता जरूर होना चाहिए। सो वो चीज़ा आप कर रहे हैं। चलो अगे चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक तुहाडा चेंज ऑफ ऑर्डर। तो एक चीज़ होर दस देवां, चेंज ऑफ ऑर्डर भी एक लेंथी क्वेश्चन बनता है, उसके विचों भी मतलब बहुत घट क्वेश्चन आए हुए हैं पर आप करांगे जरूर क्योंकि अपने सिलेबस के विच मैंशन है ना। तो चेंज ऑफ ऑर्डर की गल कर लैंदे। चेंज ऑफ ऑर्डर का मीनिंग की हुंदा है। सब तो पहली गल तो जो तुसीं एक्स एक्सिस नूं वाई दे विच कन्वर्ट कर देने हो, लिमिट्स नूं चेंज कर देने हो तो उन्होंने आप चेंज ऑफ एक्सिस बोलते हैं, ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। चेंज द ऑर्डर इत्थे मैं लिख भी देनी हाँ, चेंज द ऑर्डर, ठीक है। हुण देखो चेंज द ऑर्डर दे विच मैं सब तो पहले एक एग्जाम्पल लूँगी क्योंकि जो आप एक एग्जाम्पल लैके क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे तो मैनूं लगदा ज़्यादा चीज़ां क्लीयर होणगियां और क्वेश्चन समझना थोड़ा ज़्यादा सौखा हो जाएगा, ठीक है जी। करिए स्टार्ट। सो ये लिए जो मैं एग्जाम्पल लै रही हाँ वह भी तो ग्रेजुएशन की बुक की पहली एग्जाम्पल है। सो काफ़ी अच्छे तरीके नाल कोशिश करांगे उन्होंने क्लीयर करन दी। चलो जी, सो योर एग्जाम्पल इज़ मैंने इंटीग्रेशन करनी है 0 तो लेके 1 एंड 3y तो लेके 3 तक और नाल मैंने फंक्शन भी दिता होया क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियसली विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो विद रिस्पैक्ट टू वाई तक करांगे। हुण कहंदे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व किवें करना है, ऑर्डर को चेंज करके, ठीक है। हुण तुसीं ऑर्डर को चेंज करन दा मतलब की समझते हो। देखो सब तो पहला तो जो मैंने लिमिट्स दित्तियां होईयां ने मैं उन्हां लिमिट्स को ड्रॉ कर लैनी है क्योंकि मैंने पता होना चाहिए कि आखिर मैंने दिता की होया, ठीक है। ध्यान नाल देखो मैं रिपीट कर रही हाँ, क्वेश्चन मेरे को हैगा सी 0 तो 1 एंड 3y तो लेके 3। इत्थे मेरे को चलो कुछ फंक्शन दिता होया सी, पहला मेरे को x दी लिमिट सीगियां फिर मेरे को y दी लिमिट सी। तो सब तो पहला ये मेरे को ग्राफ है जी। इस ग्राफ दे विच हमेशा पहला ड्रॉ कर लो। मैनू पता है कि ये जड़ियाँ लिमिट्स ने ये x दी लिमिट्स ने, मीनस टू से 3y इज़ इक्वल टू x एंड 3 इज़ इक्वल टू x। दो इक्वेशंस मेरे को आ गई और मैनू पता है ये दोनों लिमिट्स मेरे को y दी लिमिट्स ने, मीनस टू से y इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 0। चलो जी सारियां ही लाइनां सारियां ही इक्वेशंस मेरे को हुण तैयार ने। आ चारां चीज़ां नूं मैंने की कर लेना, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो इन्हां चारां नूं ड्रॉ करिए। सब तो पहली चीज़ मैंने दिख रही है y इज़ इक्वल टू 0 तो मैंने इनू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। मैंने पता है जी आवली लाइन होंदी है एक्स एक्सिस की एक ही इक्वेशन होंदी है, y इज़ इक्वल टू 0 की इक्वेशन होंदी है। फिर मेरे को आ गया जी y इज़ इक्वल टू 1। जो y इज़ इक्वल टू 1 की गल करते हैं मैंने पता है y इज़ इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल इत्थे होएगा, ठीक है। तो मतलब ये जी मैं इत्थे लाइन ड्रॉ कर दी है दिस वन, यह कि इक्वेशन है दिस इज़ फॉर द y इज़ इक्वल टू 1। एग्री हो सारे, ठीक है। थोड़ा सा होर अगे बढ़ते हैं, x इज़ इक्वल टू 3। x इज़ इक्वल टू 3 अगर 1 2 और 3 इत्थे है तो x इज़ इक्वल टू 3 करके मेरे को आवली लाइन बन जाती है। दिस इज़ ऑल्सो माई अनदर इक्वेशन, ठीक है। हुण सिमिलरली इनू ड्रॉ कर लेने y इज़ इक्वल टू 3x। y इज़ इक्वल टू 3x का मतलब की है कि जेकर मैं x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करती हाँ तो मेरे को x की वैल्यू 3 आ जाती है। तो ये पॉइंट भी तो उही सीगा, जो मैं y की वैल्यू 1 पुट करांगी
x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये लाइन ओरिजिन चो भी पास होएगी और इस पॉइंट के विचों भी पास होएगी। ठीक है, तो इस तरीके नाल मेरे को ये लाइन की इक्वेशन बन गई। ये लाइन केड़ी है जी, 3y इज़ इक्वल टू x। चलो हुण मैंने सारा कुछ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सारा कुछ ड्रॉ करन तो बाद हुण मैंने दरअसल करना की है, मेरा मेन पर्पज़ ऑर्डर चेंज करने का मतलब यही हुंदा है कि जिहड़ियां तुहाडे कोल x दी लिमिट सी उहनूं y दे विच चेंज कर लो। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ, y ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟਾਰਟ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, मतलब ये रीजन इत्थों लैके इत्थे तक कवर हो रहा सी। मीनस टू से ध्यान नाल देखो, ये मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कवर कर रही हाँ। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कित्थों कवर हो रहा सी, 3y तो लैके इत्थे मेरे को एक्स की वैल्यू 3y है और इत्थे मेरे को एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3y तो लैके 3 तक मेरा ये डिस्टेंस कवर हो रहा सी। एग्री हो सारे, हाँ ना दे विच एक बारी जवाब दे दो कि हाँ जी सानू ये चीज़ समझ आ गई कि जो असीं गल कर रहे हैं कि 3 मतलब आ वाला डिस्टेंस असीं कवर कर रहे हैं, इत्थे मेरे को एक्स की वैल्यू 3y है और इत्थे मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो पहली लिमिट मेरे को यही आ गई। दूसरी लिमिट की गल कर लो, दूसरी लिमिट मैनू की दी हुई है, y की लिमिट दी हुई है जो मेरे को की है 0 तो लैके 1। चलो दूजी नूं फेर छड़ांगे। मैंने होरीजोनटल नूं कन्वर्ट करना है किहदे विच, वर्टिकल दे विच। रिपीट कर रही हाँ, जो मैं ऑर्डर चेंज कर रही हाँ तो मेरी जो स्ट्रिप है वो होरीजोनटल तो कन्वर्ट होके किधर जाएगी जी, वर्टिकल दे विच जाएगी। दिस इज़ माय वर्टिकल। हुण वर्टिकल जिहड़ा कवर हो रहा है काम, वो किवें कवर हो रहा है, ध्यान नाल देखो। वर्टिकल दे विच मेरे को ये वाली लिमिट कित्थों स्टार्ट हो रही है, ध्यान नाल देखो। y दी लिमिट्स आ गई हुण मेरे को। ठीक है, तो y की लिमिट कित्थों स्टार्ट हो रही है, तुसीं कहोगे मैम 0 तो। हाँ जी बिल्कुल 0 तो स्टार्ट हो रही है। मैंने x दी लिमिट्स नूं y दे विच कन्वर्ट करता, 0 तो स्टार्ट होकर कित्थे तक जा रही है, तुसीं कहोगे इत्थे तक जा रही है। हुण इत्थों जेकर मैं y की वैल्यू कड्ढण की कोशिश करां तो y की वैल्यू की निकल जाती है, तुसीं कहोगे x/3 आ जाती है। तो बिल्कुल इत्थों मेरे को x की वैल्यू एक्स के फॉर्मेट के विच मैंने कढ़ ली। मतलब जो डिस्टेंस मैं पहला एक्स के थ्रू चल रही सी वो मैंने हुण वर्टिकली लै लिया, वाई के थ्रू उसनूं कवर किया, तो मेरे को की बन गई जी नवीं ई दी पावर एक्स स्क्वेयर। हुण ये जिहड़ियां मेरे को लिमिट्स आईयां ने, ये मेरे को वाई दियां लिमिट्स ने। आई विल रिपीट इट अगेन, ये हुण मेरे को कन्वर्ट करन तो बाद किहदियां लिमिट्स ने, वाई दियां लिमिट्स ने। हुण चलो आपां सैकेंड के उपर चलदे हां। सैकेंड मेरे को किहदियां लिमिट्स होणगियां, ओबवियस है कि सैकेंड मेरे को किहदियां लिमिट्स ने, ऑलरेडी जिहड़ियां मैनूं पुरानियां गिवन सी वो मेरे को वाई दियां लिमिट्स सी, है ना। उदों किवें काम हो रहा सी, तुसीं कहोगे मैम उदों भी इदां ही काम हो रहा सी। ठीक है, हुण इहदे विच जिहड़ा काम हो रहा है, उत्थे तुहाडे कोल जदों होरीजोनटली तुसीं कवर करदे हो तो तुहाडे कोल जिहड़ियां वाई दियां लिमिट्स ने वो 0 तो लैके 1 तक कवर कर रही ने। तुसीं ये चीज़ देख सकते हो कि 0 तो लैके 1 तक तुहाडा डिस्टेंस इत्थे कवर किया जा रहा सी, पर क्योंकि हुण आपां ने एक्स दे विच उसनूं कन्वर्ट करता तो एक्स तुहाडे कोल कित्थे कित्थे तक कवर कर रहा है, तुसीं कहोगे 0 तो लैके 3 तक। ध्यान नाल देखो 0 तो लैके 3 तक। हुण इहदा रीजन की है, पहला तुहाडे कोल जिहड़ा कवर अप सी वो 1 तक हो रहा सी, इस इक्वेशन नूं लिया गया सी। हुण तुहाडे कोल जिहड़ा कवर है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग किहदे तक हो रहा है, 3 तक हो रहा है, इस इक्वेशन नूं लिया गया। ठीक है, सो कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ नूं आपां ने की किया, चेंज किया। एक्स दी लिमिट्स नूं वाई दे विच चेंज करता और वाई दी लिमिट्स नूं एक्स दे विच चेंज करता, होर कुछ भी नहीं किया। काफ़ी ठीक जा काम है, थोड़ा जा एक बारी दो लगन तो हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये क्वेश्चन जेकर एक बार तुहानूं समझ आ गया तुसीं कदे इन्हां दे विच गलती नहीं करोगे। ठीक है जी, ये सीगा अपना चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब हुण तुसीं सारे समझदार हो और समझ भी गए हो कि की किया होया, एक्स दी लिमिट्स नूं वाई दे विच चेंज किया और वाई दी लिमिट्स नूं एक्स दे विच चेंज किया, दैट इज़ चेंज ऑफ ऑर्डर। इस दे नाल ही तुहाडा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुंदा है। इस तो इलावा तुहाडे कोल इंटीग्रेशन दे विच होर कुछ भी नहीं हैगा। मैनूं लगता है मैनूं एक अद्धी एग्जाम्पल होर लै लैनी चाहिए है जिस दे विच आपां ऑर्डर नूं चेंज करते होइए, ताकि तुहानूं मतलब कन्फ्यूजन ना होवे, है ना। तो सो जस्ट फॉर कंफर्ट मैं एक एग्जाम्पल होर लै रही हाँ। मान लो मैनूं की दित्ती हुई है जी, इंटीग्रेशन दित्ती हुई है 0 to a, यही भी तुहाडी ग्रेजुएशन की बुक की ही एग्जाम्पल है, एंड फ्रॉम y to a। ठीक है, अंदर चलो मैनूं कोई भी फंक्शन दिता होया है वो तुहाडा एज इट इज़ रहेगा, फंक्शन दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि आपां ने लिमिट्स के उपर काम करना हुंदा है। ठीक है, सो हुण क्योंकि मैनूं ये कहंदे इहदा ऑर्डर चेंज करो, तो ठीक है जी ऑर्डर चेंज करना है, तो जो कि अपना सब तो पहला काम हुंदा है अपनियां लिमिट्स नूं देखना। देखो ये दोनों लिमिट्स किहदियां ने, देख के पता लग रहा है कि ये दोनों लिमिट्स एक्स दियां ने,
क्योंकि वाई के फॉर्मेट के विच आ गई। तो मेरे को एक तो इक्वेशन बन जाती है एक्स इज इक्वल टू ए और एक इक्वेशन बन जाती है एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और ये दोनों लिमिट्स किदियां ने, ये दोनों लिमिट्स ओबीअसली फिर किदियां रह जाएगियां, वाई दियां रह जाएगियां। ठीक है, सो इत्थों मेरे को बन जाता है जी वाई इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो चलो क्योंकि मेरे को चारों इक्वेशनस तैयार ने, आप इन्हों ड्रॉ कर लें। हाँ जी, तो किहड़ियां एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0। चलो, तो मैंने की किया, ड्रॉ किया। सब तो पहली इक्वेशन मैनू इन्हू ड्रॉ करना सब तो ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि ये ड्रॉ करना ही नहीं पैंदा। वाई इज इक्वल टू 0 ये मेरे को आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सैकेंड की गल करिए, वाई इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए कितने होएगा लाइक दिस इज़ माई पॉइंट। तो चलो जी इन्हू ड्रॉ कर लैने। ये मेरे को कि इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज़ फॉर वाई इज इक्वल टू ए। उस तो बाद आ गया एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए भी मेरे को कितने ना कितने इत्थे होएगा। ठीक है, दिस इज़ एक्स इज इक्वल टू ए और ये वाला पॉइंट मेरे को कितना आ गया जी, ए एंड 0 आ गया। हुण एक चीज़ तो क्लीयर है कि ये वाला पॉइंट मेरे को की होने वाला है, ए पॉइंट होने वाला है क्योंकि एक्स की वैल्यू भी ए है और वाई की वैल्यू भी ए है। तो नैचुरली जो एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन है वो किहदे विचों, ओरिजन के भी पास करेगी और इस दे विचों भी पास करेगी। तो चलो जी इसनूं ड्रॉ करता। ठीक है, ये मेरे को प्रॉपरली इक्वेशन बन चुकी है। हुण इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो लिमिट्स ने वो चेंज करनियां ने। गिवन क्वेश्चन के मेरे को पहला लिमिट्स की सी वाई तो लैके ए तक सी और ये लिमिट किदियां सी, एक्स दियां लिमिट सी। हुण ये काम कित्थों कित्थे हो रहा, सोच के देखो ये काम किवें हो रहा। तुसीं आप दिमाग लगाओ कि सब तो पहला तो ये एक्स दियां लिमिट्स ने, है ना, एक्स दियां लिमिट्स ने वाई तो ए तक जा रहे हैं। कहने का मतलब की है, ये होरीजोनटल जा रहे हैं। होरीजोनटल जा रहे हैं तो अपने कोल पहला की सी वाई तो लैके ए तक जाया जा रहा है क्योंकि इत्थे तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू किहदे इक्वल है, वाई दे इक्वल है और इत्थे तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू किहदे इक्वल है, ए दे इक्वल है। तो आपां होरीजोनटल नूं किहदे विच कन्वर्ट करांगे, वर्टिकल दे विच कन्वर्ट करांगे। सो वर्टिकल इसनूं चेंज कर दो। जो मैंने वर्टिकल चेंज किया तो पहली गल तो जो मेरी लिमिट सी वो एक्स की जगह किस दे विच कन्वर्ट हो जाएगियां, वाई दे विच कन्वर्ट हो जाएगियां। शुरुआत कित्थों हो रही है जी, 0 तो हो रही है और किते ना किते कित्थे जाके स्टॉप हो रहा है। तुसीं कहोगे एक्स इज इक्वल टू वाई और इत्थे मेरे को एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो मेरे को यह नवी लिमिट आ चुकी है। क्लीयर है, इतों तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। ठीक है, हुण जो दूसरी लिमिट सी वो दूसरी लिमिट की सी जी 0 तो लैके ए तक सी और यह मेरे को किहदियां लिमिट सीगियां, वाई दियां लिमिट सीगियां। हुण वाई दियां लिमिट्स किवें काम कर रही सी, मतलब मेरे को 0 तो लैके ए तक, ठीक है, इस लाइन तक काम कर रही सी इत्थों लैके। तो जो मैंने इसनूं कन्वर्ट किया वर्टिकल तो होरीजोनटली तो मैं कहांगी कि मेरियां लिमिट्स 0 तो लैके इत्थे तक काम करनगियां। मतलब यह कुछ इस तरीके नाल काम करनगियां, मतलब 0 तो लैके जिन्नी मेरे को एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू नैचुरली वो भी सेम ही आ गई, बट जरूरी नहीं हर बारी सेम आए जिमें तुसीं प्रीवियस क्वेश्चन के देखा। तो वो अकॉर्डिंग क्लीयर है कि अपनी जो नवी इंटीग्रेशन की जो बनेगी अपने को ऑर्डर वो कुछ इस तरीके नाल बनेगा। ठीक है जी, क्लीयर है। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन तुहाडा इत्थे कंप्लीट हुंदा ऑल ओवर। चेंज ऑफ वेरीएबल तुहाडा ऑलरेडी डन सीगा, प्रीवियस क्लास दे विच आपां कर चुके हैं। ठीक है, इस अलावा स्टिल किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो तुसीं मैनूं पुछ सकते हो कमेंट सैक्शन दे विच। चलो अज शायद तुहाडी क्लास ना होवे बट कल तुहानूं जो प्रॉपर मैं अज कोशिश करांगी तुहाडा टाइम टेबल बनाने दी कि किन्ने दिनों दे विच आपां किहड़ा टॉपिक कवर करना है। सो ये काम मैं अज करन लगी हाँ और तां ही तुहाडे लई जो रिकॉर्ड क्लास अपलोड की है। मिलते हैं फिर कल नूं शाम नूं 6 बजे जिस दे विच आपां ने की डिस्कस करना है जी प्रॉपर वे दे नाल नवां चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करना है। ठीक है, सो कोशिश करियो मैक्सिमम शेयर कराया करो, थोड़ा बहुत साथ दिया करो, है ना, तुहाडे साथ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं कल नूं शाम नूं 6 बजे एंड स्टिल कोई भी डाउट होया तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जरूर पूछ लियो। धन्नवाद तुहाडा सब दा।